is the programming language first. Okay, as we know all, nowadays programming language is the core part of any industry, any IT industry basically. In IT industry there is various job roles like software engineer, or software developer. In these job roles, everyone who are finding this job, so that one need any one programming language. So basically, why programming language is there? Why computer need these programming languages? So just consider, computer is the machine, okay, and if you want to communicate with the machine, then we can use the language as our Marathi, Hindi or English language. Programming is also a language, as we said, the language is there. So the language is the medium to communicate with each other, and we users and computer is the machine. So if we want to communicate with the machine, then and then only we need any medium. So medium is the language, and as in our programming language in our Marathi, Hindi or English language, there is the definition of any language. There are some words, there are some grammar, there are some verbs, there are some noun. Like this, in any programming language, the same concepts are there, but the words are different, the meaning are different. Okay, so we are going to learn why programming language, then we move to the Python. Okay, so first of all, language, machine and human both are want to communicate with each other, then language is there. So just consider, there is the language of human now, and there is language of machine. Our language can be English. Machine language is the only language that machine knows. Okay, machine language. So how we can communicate with the machine if we know only English language, machine knows only the machine language. So to make this communication possible, and to overcome this bridge from these of these two language, there is the programming language. Programming language ends the difference between these two medium, because we write the code in English and the programming language convert that code into a machine language. अब machine language क्या है? Machine language जिसमें 0 और 1 आता है, nothing else. Machine language में सिर्फ 0 और 1 ही आता है. Okay, if you want to communicate with the machine, then we can just start the machine and we can stop the machine, like our fan, like our light, like this. So all these are the machines, and if machine can start only or the stop only, how to communicate or how we can perform many and many operations in the computer. We can call each other, we can share the videos, we can click the pictures. How these operations are happening? These operations are happening because of there are multiple machines. So what is, as I say, machine can start and stop. So multiple machines when get together, it means जब इतने सारे machines एक जगह आएंगे and they simultaneously get on and get off, then there are some operations happens. Like if multiple machines, so I want to say that multiple machines, there are the transistors in the processor of the computer. You know what is the processors? Okay, so processors, in that processor there are thousands and millions of the transistors there, and every transistor has, if we call a machine, then the transistor can start like this and stop. Okay, ट्रांजिस्टर्स एक तो स्टार्ट होगा या फिर स्टॉप होगा. अगर वो स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है और मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक जगह आ रहे हैं, दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, देन द ऑपरेशन आर हैपनिंग. तब ऑपरेशन हो रहे हैं, तब मशीन काम कर रहा है. अभी अगर हम लाइट भी देखें, अगर किसी कैमरा में अगर हम लाइट भी देखें, तो लाइट भी हमें वो ब्लिंक करता नजर आएगा.
वो लाइट हमें सिर्फ ऑन नहीं दिखेगा या फिर सिर्फ ऑन ऑफ नहीं दिखेगा, हमें वो लाइट भी ब्लिंक करता नज़र आएगा। उसी तरह से मल्टीपल जो मशीन्स है या फिर मल्टीपल जो ट्रांजिस्टर्स है वो ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, और उनकी वजह से ये सब ऑपरेशन मशीन या फिर कंप्यूटर कर पा रहा है। तो वही हम सीखेंगे कि हम ये ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं या फिर इसकी लैंग्वेज को हम कैसे बोल सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो इतना तो कवर हो गया कि मशीन है, मशीन से बात करना है। बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए जो कि मशीन लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज में तो हम बात करना इजी नहीं है, हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर्स को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उससे हम बात कर पाएंगे मशीन से। ओके, सो as I say, there are multiple transistors or there are thousands of transistors. It means there are thousands or there are millions of 0 and 1s. There are millions of 0 and 1s. As you know or as everyone know, there is a binary language. There is the binary language which know only 0 and 1 like this. In this language, if 0 and 1 is there, we can say 0 0 as a 0. If you write what is happening there, 0 1 is 1, 1 0 is 2, 1 and 1 is 3 like this. It means हो क्या रहा है कि जब दोनों मशीन ऑफ है तो 0 आ रहा है, एक मशीन ऑफ है दूसरी मशीन ऑन है तो ऑन आ रहा है, पहली मशीन ऑन है दूसरी मशीन ऑफ है तो 2 आ रहा है, दोनों मशीन ऑन है तो 3 आ रहा है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये खाली इतने नंबर्स के लिए हो रहा है। मतलब अगर हम सोचे कि खाली हमें नंबर लिखने हैं बाइनरी में 1 2 3 4 तक जाना है, तब हमें इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। तो सोचो अगर हमें बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन करना है, जस्ट लाइक हमें सिर्फ एडिशन करनी है 234 + 24, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस और वी हैव टू एडिशन। अगर हमें इतना एडिशन ही करना है तो हमें कितना सारा 0 और 1 लिखना पड़ेगा, बहुत सारा 0 और 1 लिखना पड़ेगा। ये जो 0 और 1 है, समझो कंसिडर करो कि इतना इनको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, शायद 1 1 0 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ऐसा बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये मैंने बहुत छोटा लिखा है, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसके बाद 24 का भी कुछ तो 1 0 1 1 ऐसा कुछ तो नंबर आएगा, और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी 0 और 1 में आएगा। मतलब खाली एक एडिशन करने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक एडिशन ऑफ दिस ओनली 2 नंबर्स, देन वी हैव टू राइट लाइक दिस। इट मीन्स 200 300 400 के ऊपर 0 एंड 1 लिखने पड़ेंगे, तब जाके एक नंबर का एडिशन हम कर पाएंगे। तो अभी अगर इतना सब कुछ करना है, हमें इमेजेस भी क्लिक करने हैं, हमें कॉल भी करना है, हमें इंटरनेट भी चलाना है, हमें बहुत सारे वर्क अगर करने हैं, तो हमें कितना कोड लिखना पड़ेगा, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए, ये सब सीखने के लिए हो सकता है कि हमें साल लगे, 3 साल 4 साल 5 साल लगे। तो इन सबको ओवरकम करके कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि ये जो पूरा कोड है वो कन्वर्ट करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है। मतलब कि ये कोड उन्होंने समझ लिया, उन्होंने सीख लिया, बस अब उसको कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपनी इंग्लिश में लिखी वाली है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर रही है, अब हमने जो लिखा है वो कोड ही कन्वर्ट करके मशीन को बता रहा है कि दीज आर द बाइनरी नंबर्स दैट द पर्सन वांट टू आउटपुट फ्रॉम यू। ओके, ये बाइनरी नंबर है जिसका इनपुट आपको मिला है। मशीन को क्या करना है, वो बाइनरी नंबर पे जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन से मशीन को आउटपुट निकालना है। ये सब करने का काम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। अभी जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब काम करती है, तो ये कैसे चलता है हम वो भी देखेंगे एक बार। ओके, तो जस्ट कंसिडर करो कि ये अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे अपनी मशीन है और यहाँ पे अपना कंप्यूटर है जिस पे हम या फिर जिस पे हम काम करना चाहते हैं, ये उसका प्रोसेसर है। ओके, अगर हम लिखे कोई प्रोग्राम में, अगर कोई हम कोड लिखे जैसे कि a = 10, b = 20, c = a + b, और हमें इसे प्रिंट करना है। ओके, इसे हमें प्रिंट करना है, प्रिंट c। तो हमें क्या करना पड़ेगा
पहले तो ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, फिर ये 10 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, बाद में बी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, 20 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में। ये सब चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेगी अगर हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अपने पास क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम बस इतना लिख दे रहे हैं और ये सीधा हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे रहे हैं, पाइथन को दे रहे हैं। ओके, अभी पाइथन क्या कर रहा है, इसे कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, इसे कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, तब जाके इस मशीन को समझ में आ रहा है कि यूजर्स क्या चाह रहा है, तब जाके इस मशीन को समझ में आता है कि यूजर्स क्या चाह रहा है। बाद में ये मशीन क्या करते हैं, इससे ओके सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर ऑपरेशन करना है तो जो भी ऑपरेशन होगा जस्ट लाइक सी इज इक्वल्स टू 30, ये ऑपरेशन ये जो 30 है ये प्रोड्यूस करेगा फिर से बाइनरी में, ये फिर से बाइनरी में प्रोड्यूस होगा, और ये जो बाइनरी में प्रोड्यूस हुआ है इसका कन्वर्जन फिर से पाइथन हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में करके देगा। मतलब पाइथन क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहा है, जिससे हो क्या रहा है, अपना ये जो पूरा कोड है जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कोड बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है ताकि किसी मशीन को समझ में आए या फिर कंप्यूटर को समझ में आए, और कंप्यूटर जो आउटपुट देना चाहता है जो कि बाइनरी में है वो कन्वर्ट कर रहा है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ताकि वो यूज़र को समझ में आए। इसलिए होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी अगर हम पाइथन में आए या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो मैंने अगर इसको कहा है कि ये एक लैंग्वेज है, तो जैसे पहले भी बोला था, ओके, एज आई ऑलरेडी सेड, इफ देयर इज लैंग्वेज देयर आर सम वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज। ओके, उसके खुद के भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अपनी हिंदी लैंग्वेज अगर हम बोले या फिर इंग्लिश, ओके, हिंदी और इंग्लिश हैज़ इट्स ओन वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, इंग्लिश हैज़ इट्स ओन रिजर्व वर्ड्स। ओके, इनके खुद के ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रन या फिर हिंदी में लिखूँ उसको भागो, we know the meaning of these words, we need not to ask everyone that what's the meaning of these words, we know the meaning of these words। रन का मतलब भी हमें पता है, हिंदी में अगर बोले तो भागो का मतलब भी हमें पता है कि भागना है किसी को, तो ओके, we know the meaning of these words and these words are already reserved, so हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, किसी का नाम नहीं होगा, किसी बंदे का नाम नहीं होगा रन, या फिर किसी इंसान का नाम नहीं होगा भागो। ओके, तो ये रिजर्व्ड है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रिजर्व्ड है, हम उसे बोलते हैं कीवर्ड्स, जो कि अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व करके रखे हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, या फिर उसका मीनिंग जो है वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन को उसका मीनिंग पहले से पता है। ओके, पाइथन को उसका मीनिंग पहले से पता है, इसके लिए ये वर्ड्स रिजर्व रखे हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। ओके, जैसे अभी मैंने बोला कि ये रिजर्व्ड है, इसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से पता है। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है, जैसे कि अभी कोई वर्ड है विशाल, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ विशाल, द विशाल ओनली, देयर इज नो मीनिंग, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। लेकिन जब ये विशाल नाम किसी इंसान के साथ जुड़ जाता है, तब इसका मीनिंग चेंज होता है, या फिर इसका मीनिंग मतलब हो जाता है, कुछ तो मीनिंग निकलता है कि ओके, विशाल किसी का नाम है, विशाल इज द आइडेंटिटी फॉर एनीवन। ओके, ये आइडेंटिटी है, किसी की तो आइडेंटिटी है, मतलब किसी का तो नेम है विशाल। ओके, मतलब इसका खुद का ऐसा मीनिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं है विशाल में, जैसे कि रन में एक एक्शन है, भागना है, जैसे कि स्लिप में ओके एक एक्शन है, जैसे कि ईट में एक एक्शन है, वैसे विशाल में या फिर राज में या फिर जॉन में कोई एक्शन नहीं है। दीज आर द वर्ड्स ओनली, बट व्हेन दे आर शोइंग और दे आर अटैच विथ एनी पर्सन और विथ समवन, तब उसका मीनिंग निकल रहा है, तब ये आइडेंटिटी दिखा रहे हैं किसी इंसान की, या फिर अगर किसी लड़की का नाम है तो वो आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो ऐसे जो वर्ड्स है, इन्हीं वर्ड्स
ऐसे ही कुछ वर्ड्स अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्राम, नॉट ओनली पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दो जो रहते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, इनके भरोसे पे ही पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ अपने भी लैंग्वेज इनके अलावा नहीं है। कोई भी सेंटेंस हम अगर बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस में मतलब किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें या तो कोई एक्शन आ रहा है, इट मीन्स या तो वर्ब आ रहे हैं, ओके, नहीं तो नाउन आ रहा है, ओके। इनके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है किसी भी लैंग्वेज में। अपने जो मराठी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें या तो वर्ब आ रहा है या तो नाउन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन जो है उसमें भी इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, या तो कीवर्ड्स आएंगे या तो आइडेंटिफायर्स आएंगे। लेकिन जैसे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी हम बातें करते हैं वो सब इनके अलावा कुछ नहीं है। जैसे एडवर्ब और प्रोनाउन है लेकिन इनके ही कुछ अलग वर्जन्स है, लेकिन इनके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हीं को मिला के हम पूरी लैंग्वेज बोलते हैं, फिर इन्हीं को मिला के हम पूरी भाषा बनाते हैं, ओके। वैसे ही अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है, ये इनको मिला के या फिर इनसे इनके कॉम्बिनेशन से ही अपनी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी होती है। लेकिन वहाँ पे भी एक और पार्ट आता है। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूँ अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू पुणे, ओके, ही इज़ गोइंग टू पुणे, अपनी भाषा में लिखा है मैंने, ही इज़ गोइंग टू पुणे। सो यहाँ पे क्या है, ही, इट मीन्स ये किसी का आइडेंटिटी है, किसी को तो हम शो कर रहे हैं कि ये कौन है। तो ही इज़ गोइंग टू पुणे, कोई तो एक्शन हो रहा है, वो जा रहा है कहाँ, पुणे, ये किसी सिटी का नाम है, ओके। तो कोई तो कहीं पे तो जा रहा है, ओके, ये एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, ओके। लेकिन अगर मैं इसी को अपनी हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ, ही मतलब वो, इज मतलब है, गोइंग मतलब जा रहा, टू मतलब को बोल सकते हैं हम, और पुणे, पुणे, कोई अगर पुणे को जा रहा है तो उसको हम अगर इस तरह से लिखे, वो है जा रहा को पुणे, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। हालांकि इसका मीनिंग है लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं। लेकिन इसको अगर मीनिंगफुल मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। एंड हाउ डू आई डू दैट, इसको मैं कैसे रीअरेंज करूंगा, वो पुणे को जा रहा है, वो पुणे को जा रहा है, मतलब क्या है, हमारे पास कोई वर्ब्स है, नाउन्स है, इनको मिला के अगर अपना सेंटेंस बन रहा है, ओके। जैसे मैंने बोला कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है, जैसे यहाँ पे हमें ये अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ये अरेंजमेंट सही होना चाहिए, उसी तरह अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अरेंजमेंट सही होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स सही होना चाहिए, मतलब हमें लिखना है कीवर्ड से, हमें लिखना है आइडेंटिफायर से, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन उन लिखने की जो तरीका रहेगा उसे हम बोलेंगे सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं सिंटैक्स, ओके। और सिंटैक्स में क्या आता है, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, इन दोनों का अरेंजमेंट, अलग अलग कीवर्ड्स है, अलग अलग आइडेंटिफायर्स है, उनके जो अरेंजमेंट रहेगा या फिर उनको मिला के क्या बनेंगे, सिंटैक्स बनेंगे। अब जैसे कि ये प्रोग्राम या हमारी लैंग्वेज में जैसे ग्रामर है, जैसे ग्रामर है वैसे ही यहाँ पे सिंटैक्स है, जो कि ये क्या करता है, ये आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स का क्या निकालता है, मीनिंग निकालता है। अगर हम इसको कहीं पे भी लिखते तो उसका मीनिंग नहीं आएगा, इसलिए सिंटैक्स है। अगर ये सिंटैक्स है और इसका मीनिंग निकालना है, तो अभी मैंने क्या बोला कि वो जा रहा है को पुणे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे ही अगर मैं कहीं पे भी लिख दूँ तो इसको कौन मतलब वैलिडेट करेगा, कौन उसको ये करेगा कि ये सही है कि नहीं। मतलब हमें ये लैंग्वेज आती है, इंग्लिश हमें आता है, मराठी हमें आता है, हिंदी हमें आता है, इसलिए हमें पता है कि कोई सही सेंटेंस है कि नहीं। लेकिन अपने पास ऐसा कुछ है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिससे कि समझ में आए कि ये जो सिंटैक्स लिखा है वो सही है कि नहीं, उसके लिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये मल्टीपल कीवर्ड्स और मल्टीपल आइडेंटिफायर जो रहते हैं उनका अरेंजमेंट
सिंटैक्स में है कि नहीं, मतलब उनका अरेंजमेंट सही है कि नहीं, ये वैलिडेट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर। अपने पाइथन में भी रहता है कंपाइलर। हाँ, हालांकि अपने पाइथन के कंपाइलर को हम आइडेंटिफायर इंटरप्रेटर बोलते हैं, लेकिन वो कंपाइलर ही होता है जो कि इनका जो अरेंजमेंट है उनको वैलिडेट करता है और हमें बताता है कि ये सिंटैक्टिकली, ये जो लिखा है, ये जो पूरा कोड है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं। ओके, अब ये कंपाइलर का काम है ये पूरा वैलिडेट करना। ये सब चीज़ें हो गई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो जो कि जिससे हम प्रोग्राम बनाने हैं, जिससे हमने सोर्स कोड बनाना है, या फिर जिससे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, उन सब में ये सब तो आना ही है। ओके, अब ये सब तो हो गया किसी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अभी अगर हम सिर्फ पाइथन की बात करें, या फिर हमें सिर्फ पाइथन देखना है कि पाइथन में क्या है दूसरी प्रोग्रामिंग के इस पे, या फिर दूसरी प्रोग्रामिंग से अलग पाइथन में क्या है, तो पाइथन जो है, ओके, सबको पता है कि पाइथन सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन में सबसे बड़ी बात तो लेस कोड है। ओके, पाइथन में बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, ये एक रीज़न है कि पाइथन फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, इसलिए हमें पाइथन सीखना है। अभी पाइथन सीखना है तो पाइथन के बारे में पूरा पहले जानना ज़रूरी है। तो एज अ डेफिनेशन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इफ़ एनीवन आस्क देन वी कैन से पाइथन is a general purpose programming language, general purpose programming language or high level programming language, high level programming language. अभी high level programming language in the sense the language we are writing into English only. ओके, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए हम इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। जनरल पर्पस इन द सेंस वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स विथ पाइथन, वी कैन डू वेब एप्लीकेशन, वी कैन बिल्ड एनी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी कैन डू नेटवर्किंग एप्लीकेशन लाइक दिस, दैट्स वाई इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी पाइथन कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिगम सपोर्ट करती है, तो पाइथन उप्स को सपोर्ट करता है। उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके साथ साथ पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब पाइथन क्या कर रहा है कि उप्स को भी सपोर्ट कर रहा है और फंक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है। इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर उप्स का हम कंसेप्ट ले तो उस उप्स में हमें क्लास बना के ही कोड लिखना होता है, लेकिन पाइथन हमें ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं करता है कि आपको पहले क्लास ही बनाना है, बाद में आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पाइथन क्या करता है, सीधा सीधा अगर आपको कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू डू स्मॉल थिंग्स लाइक a+b, वी कैन डू डायरेक्टली, वी नीड नॉट टू राइट any class, any object, we need not to create that much. We can say directly a is equals to 1, b is equals to 2 and a plus b is equals to 3. We can do like these things in Python. That's why we can say that Python is a functional programming language as well as object oriented programming language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि पाइथन को पावरफुल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी पावरफुल इन द सेंस हम जो डेटा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं, या फिर हम जो डेटा अपने फंक्शंस में या फिर अपने ऑब्जेक्ट में देते हैं, तो वो सिक्योर होना चाहिए। इसके लिए अपने पास क्या है, उप्स कंसेप्ट है या फिर उप्स प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी लैंग्वेज जो है वो सिंपल भी चाहिए, सीधी भी चाहिए, मतलब कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन भी चाहिए। इसके लिए हमने क्या सपोर्ट किया है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाइथन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। पाइथन अभी हर जगह अगर यूज़ हो रहा है, इवन अभी के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें हम गिटहब पे या कोरा पे अगर हम देखें, तो 5 में से 4 जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो पाइथन को अपना फर्स्ट लैंग्वेज बताते हैं। वाई दैट इज, आई मीन ऐसा क्या है पाइथन में कि पाइथन इतना पावरफुल, इतना फेमस या फिर इतना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे बड़ी बात पाइथन इज इजी टू लर्न एंड यूज।
सीखने के लिए भी इजी है और यूज़ करने के लिए है ही। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पाइथन में बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, इसलिए पाइथन इजी भी है सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए भी पाइथन बहुत इजी है। इसके साथ साथ पाइथन की जो कम्युनिटी सपोर्ट है, पाइथन का जो कम्युनिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट मतलब अगर हमें हमें प्रोग्रामिंग करते समय अगर कोई इशू आता है, प्रोग्रामिंग करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम अगर कहीं जाके गूगल पे ढूंढे या फिर कोई स्टैक ओवरफ्लो लाइक दिस या फिर कोरा पे अगर हम ढूंढे, तो वहाँ पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को हम कहते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब जो इशू लोगों को आ रहे हैं वो सॉल्व करने वाले लोग जो अपना आंसर रहता है वो उस वेबसाइट पे या फिर कहीं पे भी डालते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट। तो ये जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो पाइथन के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन दो अभी पाइथन के लिए पाइथन का खुद का रियल पाइथन बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे ऐसे बहुत सारे जो आंसर्स है उनके आंसर भी पहले से ही दिए वाले रहते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुछ हमें इशू आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रीज़न है। उसके बाद आता है सपोर्ट फ्रॉम रिनोड कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से सपोर्ट। अभी कॉर्पोरेट से सपोर्ट मतलब अभी के इसमें जो भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है या फिर जो भी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो कॉर्पोरेट जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है उन्होंने बनाए वाले रहते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूँ तो गूगल जो है, गूगल ने खुद का एक लाइब्रेरी बनाया है टेंसरफ्लो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी खुद बना के लोगों को यूज़ करने के लिए दिया है, वो भी किस लैंग्वेज में, तो पाइथन लैंग्वेज में, जो कि गूगल ने बनाया। मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, वो क्या कर रही है, वो टेक कंपनीज ऐसी कुछ लाइब्रेरीज है जो कि खुद से बना रहे हैं और लोगों को यूज़ करने के लिए फ्रीली अवेलेबल भी करके दे रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि लोगों को उनके प्रोग्राम्स करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए या फिर उनको प्रोग्राम्स करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर चाहिए वो मिल रहा है। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर कोई नया कंसेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें उसके लिए पूरा स्क्रैच से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अपने पास क्या है, ऐसे फ्रेमवर्क्स है। लाइक ये अभी एक लाइब्रेरी है, ओके, इसके जैसे कोई फ्रेमवर्क्स है जो कि हमें पहले से कुछ तो स्क्रैच से कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और हमें सिर्फ इनके फंक्शन यूज़ करने होते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पाइथन अभी के अगर आईटी ईरा अगर हम देखें तो अभी के इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का ऐसा भी एक रीज़न बोल सकते हैं कि उसमें ये जो कॉर्पोरेट से सपोर्ट मिल रहा है वो भी बहुत है। जैसे कि लाइब्रेरीज है, पांडाज है, नमपाई है। अभी पाइथन में एरे नहीं है, तो पाइथन में एरे को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए नमपाई की खुद की एक लाइब्रेरी है, तो उन लाइब्रेरी को हम इम्प्लीमेंट या फिर इंपोर्ट करके हम अपने प्रोग्रामिंग में एरे भी ला सकते हैं, एरे पे भी काम कर सकते हैं या फिर मैट्रिक्स पे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो सपोर्ट रहता है जो कि किसी भी यूज़र को या फिर किसी प्रोग्रामर को हेल्प करता है प्रोग्रामिंग करने में या फिर कोडिंग करने में, उसका काम ईजी करता है, तो ये पाइथन में बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आपको पाइथन में विजुअलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब भी है, सीबॉन भी है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी और पावरफुल लाइब्रेरीज है जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो वो भी जो कॉर्पोरेट ने, अभी मैटप्लॉटलिब अगर बोला जाए तो मैटलैब ने बनाई है, उनकी खुद की लाइब्रेरी है, तो वो पाइथन में बनाई है। इसका मतलब क्या है कि हम उनका यूज़ करके विजुअलाइजेशन अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसे हम कॉर्पोरेट सपोर्ट बोलते हैं, जो कि पाइथन में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है कि पाइथन की इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी और उसके साथ ही है स्पीड। ओके, इफिशियंसी, अभी इफिशियंसी का सीधा मतलब है कि पाइथन में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पाइथन में लेस कोड है, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, इसलिए पाइथन की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ रिलायबिलिटी है। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है पाइथन। वो किस लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है या फिर जो भी सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा, सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा। तो वो जो सिक्योरिटी हमें मिल रहा है वो सिक्योरिटी भरोसे पे हम बोल सकते हैं कि पाइथन इज अ रिलायबल लैंग्वेज। ओके,
पाइथन इज ए रिलायबल लैंग्वेज, मतलब कम कोड लिखना है इसलिए इफिशियंट है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रहा है। और रही स्पीड, तो पाइथन जैसे मैंने पहले भी बोला है, पाइथन में क्या है? पाइथन में है इंटरप्रेटर। ओके, पाइथन में क्या है? इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर बेस है, इसलिए हमारा कोड, अगर हम कोड लिखते हैं 100 लाइन का, तो वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पहले अगर हमारा ये लाइन है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हम दूसरी लाइन पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइन चेक करते बैठे, ये लाइन चेक करते बैठे और आपके 99 जो आपका लाइन है उस पर एरर आ गया, तो मतलब पूरा जो पहला आपका जो भी कोड है या फिर पहला आपका जो भी टाइम है वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपका एरर मतलब लास्ट वाले लाइन पे आया है। तो ऐसा नहीं है पाइथन में। पाइथन में क्या है? इंटरप्रेटर है, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहता है, एग्जीक्यूट होता है। जो भी कोड अगर सेव करना है कुछ मेमोरी में तो वो सेव हो जाता है। इसलिए और अगर कभी यहाँ पे एरर भी आता है पहले ही लाइन पे, तो फिर भी पाइथन जो इंटरप्रेटर वो क्या करता है? यहीं पे रुकता है, आगे नहीं जाता है ढूंढते ढूंढते कि और कोई एरर है। पहले ये एरर सॉल्व करने के बाद ही वो पूरा कोड चेक करता है। इसलिए पाइथन के पास स्पीड भी है, पाइथन एक स्पीड भी है। ओके, तो ये एक रीज़न है कि पाइथन पॉपुलर क्यों है। उसके बाद आता है कि पाइथन एक रोबस्ट लैंग्वेज है। ओके, तो इसे अब रोबस्ट लैंग्वेज ये तो पाइथन का फीचर है वैसे अगर देखा जाए तो। ओके, पाइथन के फीचर में आता है, लेकिन रोबस्ट लैंग्वेज क्यों है? बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। अब रोबस्ट लैंग्वेज का क्या मतलब है कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है उसका खुद का मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, उसके साथ ही आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और गार्बेज कलेक्शन। ये 3 चीज़ें आती है जिसे हम बोलते हैं कि पाइथन जो है वो रोबस्ट लैंग्वेज है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि पाइथन का खुद का मेमोरी मैनेजमेंट है। पाइथन को मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भरोसे पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का मेमोरी मैनेजमेंट रहता है जो कि अलग अलग रहता है। विंडोज़ का मेमोरी मैनेजमेंट अलग है, लिनक्स का मेमोरी मैनेजमेंट अलग है, मैक का मेमोरी मैनेजमेंट अलग है। तो उनके भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन का खुद का मेमोरी मैनेजमेंट है। पाइथन जो भी उसमें हम डेटा देंगे या फिर जो भी हम कोई वेरिएबल या फिर कोई ये क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसमें जो मेमोरी लगने वाली है तो वो मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट पाइथन खुद से करता है। ओके, इसलिए हम पाइथन को रोबस्ट बोलते हैं। उसके साथ है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? वैसे तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अगर सरल भाषा में बताना चाहे तो हो सकता है कि आपने कोई कोड लिखा, 10 लाइन का कोड है, 15 लाइन का कोड है, जो कि सिंटैक्टिकली बहुत करेक्ट है। सिंटैक्टिकली करेक्ट है मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूँ तो a इज इक्वल्स टू मैंने लिया 3, b इज इक्वल्स टू लिया जैसे 0 और c इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने a डिवाइडेड बाई b। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 डिवाइडेड बाई 0 ये तो इन्फिनिटी में जा रहा है। ओके, अब कंप्यूटर में तो इन्फिनिटी है नहीं, तो 3 डिवाइडेड बाई 0 अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या शो करेगी कि भाई ये तो एरर है। ओके, अभी ये एरर होने वाला है। तो ये जो एरर होने वाला है, प्रोग्राम तो सही है, सिंटैक्टिकली सब कुछ सही है, लेकिन लॉजिक जो है तो वो लॉजिकली एरर है। तो ऐसे जो एरर आएंगे वो एरर हैंडल करने के लिए पाइथन ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? पाइथन के पास एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा, समझो आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में ऐसा कुछ डाला है जिसमें कि आपको लगता है कि आगे जाके एरर आएगा, आगे जाके मतलब संभावना है कि एरर आ सकता है, तो उस टाइप पे हम क्या करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग देते हैं कि अपना जो वेबसाइट है वो क्रैश ना हो। ओके, तब क्या करेगा अपना वेबसाइट कि अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके बिहाफ पे कोई और जो प्रोग्राम होगा या फिर कोई और कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपका पूरा वेबसाइट जो है वो क्रैश नहीं होगा। इसके लिए रहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा अगर एक्सेप्शन लगाया है, तो हम एक्सेप्शन में क्या दे सकते हैं कि भाई इसको अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो दिखा दो कि ऐसा ऐसा है, आप 0 नहीं ले सकते हो या फिर कुछ और। ओके, उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्शन। अभी गार्बेज कलेक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग करते समय बहुत बार हमें लगता है कि हमने कोई एक वेरिएबल, समझो ये ऐसा वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया और ये वेरिएबल हम बाद में यूज़ करेंगे,
लेकिन हमने प्रोग्राम करते समय इसको यूज़ नहीं किया है। हमने प्रोग्राम करते समय हम भूल गए कि हमने कहीं पे ये ऐसा क्रिएट करके रखा है। अब पूरा प्रोग्राम हो गया, सब एग्जीक्यूशन हो गया, सब हो गया, लेकिन ये जो मेमोरी है वो अभी भी होल्ड करके रखा है पाइथन में। तो ये मेमोरी जो होल्ड करके रखा है, जब हम पाइथन में ये कोड का एग्जीक्यूशन करते हैं या फिर जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तब इसकी जो मेमोरी है वो पाइथन की जिम्मेदारी है कि वो मेमोरी फ्री करके रखे। वो पाइथन की जिम्मेदारी है कि वो मेमोरी को फ्री करना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी को कंसिडर करें, तो सी में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल हम कहीं पे यूज़ करना, मतलब अगर हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इनिशियलाइज करना अगर हम भूल जाते हैं, तो हमें सी लैंग्वेज में क्या करना होता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना होता है, इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। ये करने की हमें पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन का खुद का गार्बेज कलेक्शन नाम का कंसेप्ट है। वो क्या करता है कि ऐसे जो भी विदाउट इनिशियलाइज करके रखे जो वेरिएबल है, मतलब जो हमने खाली डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किए है, मतलब खाली उनको बनाया है, कहीं पे यूज़ नहीं किया है, ऐसे जो भी वेरिएबल्स हो गए, पाइथन क्या करेगा, उनको गार्बेज में डाल देगा, उनको डिलीट कर देगा। ओके, एनी डाउट?